Good morning, children. Last day we were discussing about the physical features of India. In this chapter, we started with different physical features in our country. That is this sixth one, the Himalayan mountain, northern plain, peninsular plateau, Indian desert, coastal plain, and the island. In that one, we started with the Himalayan mountain. Let me revise once again. I talked about the facts and figures of Himalayan mountain. In that one, we talked about that this is a young mountain. We talked about its extent, its length, and the what is the range, mountain range. We discussed about it. Then move to the next one. We talked about the divisions of Himalaya, that is Himadri, then Lesser Himalaya, and the Sivalik range. We also talked about its average height and the material of which it is made up of. Then we discussed about the formation of Himalaya and different heights of the Himalayan ranges. So you can look at here, this is the uh, thematic map showing the heights of Himalayan mountain, right? So the most highest mountains are found in the northern part of the Himalayan ranges, right? Then when you move towards south, you will find the um, lesser Himalayas, right? Okay. Coming to the next one, today's topic is about the division of Himalaya from west to east, right? So look at the map this carefully, right? And this map is showing the division of Himalaya from west to east, right? So as all of you know that this is the west side and this is east side. So coming to the first division is Punjab Himalaya. As all of you know that the Punjab lies in this region, right? This is the region of Punjab, right? So this Himalayas called as Punjab Himalaya, this Himalayas found between Indus and Satluj River, right? So all of you know that one river is present here, that is Indus River, and one river crosses from here somewhere here. This is Satluj River, right? So this is called Punjab Himalaya. The second is Kumaon Himalayas between the river Satluj and Kali River. So यहाँ पर काली रिवर है और यहाँ पर सतलज रिवर, इन दोनों के बीच के जो माउंटेन्स हैं उसको हम कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं. Then apart from that, the third one is Nepal Himalaya. You know that this is the country Nepal. So most of the Himalaya found in Nepal is called Nepal Himalayas. Then apart from that, next one is Assam Himalaya, right? So this is the Assam Himalayas between Tista and Dihang River. And then from Dihang River, the Himalayan mountain range towards the south, right? Okay, so this Himalaya is called Purvanchal. So you can look at here, this is the Dihang River and Himalaya bend right from here towards here. So this is the part of northeast state. ठीक है, यहाँ पर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं. I will show you on the map. So simply you have to remember the name of the river and the mountain found in between them, right? कि नाम याद रखना है कि इंडस और सतलज रिवर के बीच कौन सा हिमालय है, देन सतलज एंड काली रिवर के बीच कौन सा हिमालय है. इस तरह से आपको ये 5 हिमालयस का नाम रखना है. सो याद रखना, दिस इज द वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन एंड लुक एट हियर, दिस इज द पूर्वांचल. ध्यान से देखो, ये वाला पूर्वांचल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ तक गया है. ये दिस इज पूर्वांचल, राइट? सो यहाँ पर कई सारे आपको छोटे छोटे हिल्स मिलेंगे, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स. ठीक है, तो ये पूर्वांचल ये 4 हिल्स का बना हुआ है. याद रखना ना, पटकाई, नागा, मणिपुर एंड मिजो हिल्स. सो बेसिकली दिस इज दिहांग रिवर, राइट? यहाँ से दिहांग रिवर है और यहाँ पर ये हिमालय, ग्रेट हिमालय यहाँ से आके ऐसे मुड़ जाती है, राइट?
सो इसको हम पूर्वांचल बोलते हैं या फिर ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स बोलते हैं। ये जो माउंटेन है इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, राइट, सैंडस्टोन से बना हुआ होता है। एंड दिस इज आल्सो सेडिमेंट्री रॉक यू कैन से, ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। यू ऑलवेज नो दैट अगर आप अभी भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाओगे तो यू विल फाइंड कि वहां पर काफी ज्यादा ट्राइबल पीपल रहते हैं। एज वेल एज दिस रीजन इज कवर्ड विथ अ वेरी डेंस फॉरेस्ट, काफी ज्यादा घना जंगल मिलेगा आपको वहां पर, राइट। सो दिस इज अबाउट पूर्वांचल एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, our next topic is the northern plain, right? So we dealt with the Himalayan mountain, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नदर्न प्लेन के बारे में, राइट। सो नदर्न प्लेन पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा है। लेट मी शो यू। ओके, सो दिस इज आवर कंट्री इंडिया। ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ से हिमालयन माउंटेन के बाद वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर हिमालयन माउंटेन है, ये सारा हिमालयन माउंटेन है। इसके नीचे वाला ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, नदर्न प्लेन कहलाता है। ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, नदर्न प्लेन, राइट। ओके, सो तो देखते हैं नदर्न प्लेन के बारे में, थोड़ा समझते हैं क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली ये जो नदर्न प्लेन है इट इज मेड बिकॉज ऑफ द 3 मेजर रिवर, ठीक है, 3 रिवर हैं हमारी नॉर्थ इंडिया में, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन तीनों रिवर्स की वजह से और इसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब इसकी जो छोटी छोटी जो नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं, राइट, उनकी वजह से ये पूरा नदर्न प्लेन फॉर्म हुआ है, राइट। सो बेसिकली ये रिवर क्या करती है, जो भी माउंटेन से जब ये निकलती है तो इसके साथ जो भी सैंड सिल्ट होते हैं, इसमें जो छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, ये सब कुछ डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पर, नदर्न प्लेन में, ठीक है। सो दिस प्लेन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ फर्टाइल एलुवियल सॉइल, यहाँ पर एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होते हैं, राइट। और इसको फॉर्म होने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स में ये फॉर्म हुआ है। द एरिया ऑफ दिस नदर्न प्लेन इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द लेंथ इज 2400 किलोमीटर, जो नदर्न प्लेन का लेंथ है, ठीक है, कहाँ से, पंजाब से लेकर के इधर असम तक, राइट। सो यू नो अभी मैंने दिखाया आपको ये कितना है, 2400 किलोमीटर, राइट। एंड देन अगर इसका ब्रॉड देखो आप, अगर इधर से देखो साउथ नॉर्थ टू साउथ, तो ये लगभग कितना है, एवरेज 242 320 किलोमीटर, राइट। ओके, और ये रीजन पूरा डेंसली पॉपुलेटेड है, एज ऑल ऑफ यू नो दैट दिस नदर प्लेन इज वेरी मच सुटेबल फॉर लिविंग एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चर, राइट, क्योंकि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, राइट और नॉट, एंड people can easily live here without any problem, right? So अब देखो ये जो रिवर का कोर्स है, यहाँ पर देखो ये रिवर जो बना है, ये नदर्न प्लेन जो बना है, ये कैसे बना है, ध्यान से देखो, ये डिपोजिशनल वर्क से बना है। इफ यू लुक एट दिस, दिस इज माउंटेन, राइट, एंड दिस इज ओशन, ठीक है। सो इस डायग्राम को ठीक से देखो, जब ये माउंटेन रिवर जब माउंटेन से नीचे उतरती है तो डू यू थिंक यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी, वाटर का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा, यस और नो। लेकिन जब ये वाटर का स्पीड जब ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, अपने साथ जितने भी वहां पर जो भी रॉक्स हैं उसको तोड़ के, राइट और नॉट, अपने साथ रिवर में लेके आएगा, राइट। जब ये रिवर मिडिल कोर्स में आ जाएगी, राइट, दिस इज कॉल्ड अपर कोर्स, इसको क्या बोलते हैं, अपर कोर्स, क्योंकि यहाँ पर जो है स्लोप काफी ज्यादा हाई होता है ना, यहाँ पर पानी का रफ्तार बहुत हाई होता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है मिडिल कोर्स, ये वाला पार्ट, राइट। सो मिडिल कोर्स में क्या होता है, यहाँ पर जो रिवर की स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाती है कंपैरिजन टू द अपर कोर्स, राइट। सो यहाँ पर भी इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है, दैट मीन्स मिट्टी को ये रिवर क्या करती है, तोड़ती भी है, और मिट्टी जो अपने साथ लाई है उसको डिपॉजिट भी करती है। फिर लोअर कोस्ट में जाके क्या होता है, ये और स्लो हो जाता है और यहाँ पर काफी ज्यादा मिट्टी को यहाँ पर जमा करती है रिवर, राइट। सो बेसिकली ये रिवर क्या कर रही है, जो अपर पार्ट है वहां से
रॉक्स को या सिल्ट को या मिट्टी को तोड़ती है और इधर वाले एरिया में लाके डिपॉजिट करती है। तो इसी डिपोजिशन की वजह से नदर्न प्लेन फॉर्म हुआ, राइट। सो there is no need to read this one, right? If you able to read this, you can read it, right? And I think you will understand. We already discussed about meander, about Oxbow Lake in class 8th also. Okay, so this was some general fact about the northern plain. Apart from this, one important point you should remember that there is a island, river island, Majuli. It is in Assam on Brahmaputra river, right? Brahmaputra river है ना, उस river में एक एग्जांपल की ये river है, right? रिवर के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, राइट। ये जो आइलैंड है माजुली, इसको कहते हैं माजुली, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है। सो आइलैंड कहाँ पर होता है, ओशन में होता है, राइट और नॉट। इसको हम रिवराइन आइलैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रिवर में है, ठीक है। सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कहाँ पर मिलता है, इंडिया में मिलता है। नाम क्या है, माजुली। कौन से रिवर में मिलता है, ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम, राइट। ओके, so you should remember this one so that 1 marks question can be asked like this. Okay, now coming to the division of northern plain. अभी हमने नदर्न प्लेन के बारे में देखा कि ये पूरा नदर्न प्लेन है, यहाँ से ये पूरा दिस होल इज नदर्न प्लेन। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, नदर्न प्लेन को 3 भाग में डिवाइड करेंगे ब्रॉडली। आपके बुक में 3 ही दिया है तो आप 3 ही याद करोगे, हालांकि मैंने मैप पे ज्यादा डिवीजन दिखाए हैं, बट यू शुड रिमेंबर ओनली 3: पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, राइट। सो ये वाला पार्ट को आप कंसीडर कर लो कि ये पूरा पंजाब प्लेन है। देन ये पूरा का पूरा पार्ट इधर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, गंगा प्लेन बोलते हैं, और ये हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, राइट। सो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो मोस्टली गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। सो गंगा रिवर जहाँ जहाँ बहती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो बहती है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, गंगा प्लेन बोलते हैं। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज ट्रिब्यूटरीज। यू कैन सी हियर, दिस इज गंगा रिवर, ये वाला क्या है, गंगा रिवर है, ठीक है। इसके साथ साथ कई सारे रिवर्स ज्वाइन कर रही है ना। तो ये छोटी छोटी रिवर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। मेन रिवर कौन सा हुआ, ये वाला, राइट, ये मेन रिवर हुआ। बाकी साथ में जो ये छोटा छोटा रिवर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जस्ट लाइक हियर ऑल्सो, दिस इज मेन इंडस रिवर, राइट। इंडस रिवर के साथ साथ कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जुड़ी हुई है, राइट। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट डिवीजन, दैट इज पंजाब प्लेन। देखो यहाँ पर पंजाब प्लेन के बारे में देखते हैं। पंजाब प्लेन फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पर ये वाला रिवर कौन सा रिवर है, इंडस रिवर है, राइट। सो इस इंडस रिवर की वजह से ये प्लेन फॉर्म हुआ है। पंजाब प्लेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन पाकिस्तान। देखो पंजाब प्लेन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो ये पूरा इंडिया में दिखा है मैंने, ये पूरा पंजाब प्लेन। तो ये ज्यादातर हिस्सा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। जो इंडस रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसकी जो छोटी छोटी ये नदियां हैं, इसका नाम कई देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, राइट। ये सभी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से ओरिजिनेट होती है, राइट। देन मोस्ट ऑफ द पंजाब प्लेन का जो ज्यादातर जो हिस्सा है वो दोआब्स का बना हुआ है। दोआब किसको कहते हैं, द लैंड बिटवीन 2 रिवर। देखो ये वाला हिस्सा, ये क्या है, लैंड है, ये रिवर है, इसके बीच में ये जो लैंड है इसको दोआब बोलते हैं। ये दीज आर द दोआब्स, ठीक है। ये क्या है, दोआब्स है, दो रिवर के बीच के लैंड को हम दोआब्स बोलते हैं, राइट। सो हियर यू कैन सी दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि पंजाब का मतलब होता है 5, पंज मतलब 5 एंड आब मतलब वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, तो यू कैन से यहाँ पर जो है 5 दोआब्स हैं, इस दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ पंजाब, राइट। ओके,
Coming to the next one, this is the Ganga plain, right? Now we are talking about this area, ये वाला ब्लू कलर, ये वाला और ये रेड वाला, ठीक है, ये तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। गंगा प्लेन एक्सटेंड होता है कहाँ से? घग्गर रिवर से, समवेयर हियर घग्गर रिवर बहती है, यहाँ से लेकर के तीस्ता रिवर तक, ठीक है, तीस्ता रिवर यहाँ पर है ऐसे, ठीक है। सो इस बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं? गंगा प्लेन बोलते हैं। एंड दिस गंगा प्लेन स्प्रेड ओवर many states like हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। देखो ये पूरा है ना, यहाँ से दिल्ली यहाँ पर है ऑलमोस्ट, हरियाणा भी समवेयर यहाँ पर है, राइट। देन उसके बाद हमारा ये उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राइट, सम पार्ट ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। सो इस पूरे पार्ट में क्या है? हमारा गंगा प्लेन है। एंड इस साइड में हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, दैट इज इन असम, मोस्टली इन असम, राइट, हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, देखो ये ऐसे चाइना में चलता है और यहाँ पर बेंड होके इंडिया एंटर करती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। एंड इट कम फ्रॉम हियर एंड गोज टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, राइट। So this is called Brahmaputra plain, this is called Ganga plain. Now coming to the next one, this is the geomorphological division of northern plain, right? ये देखो ये क्या है, देखो जो हमारा नदर्न प्लेन है ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम इस तरह से डिवीजन करें इंडिया को, ये हिमालय है, राइट, हिमालय का जो फुट हिल है, राइट, इस फुट हिल में इस तरह के छोटे छोटे पत्थर दिखाई पड़ते हैं, राइट, जिसको भावर जोन बोलते हैं। दिस जोन इज कॉल्ड भावर जोन, व्हाई? बिकॉज बिग रॉक डेब्रिस कैन बी फाउंड हियर, ठीक है, चूंकि रिवर यहाँ से नीचे उतरती है तो रिवर अपने साथ जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उसको यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। नेक्स्ट हमारा है तराई रीजन। तराई रीजन हम उसको बोलते हैं जहां पर जाकर जो सॉइल पार्टिकल है वो थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है, प्लस ये काफी मार्सी होता है, यहाँ पर काफी ज्यादा मॉइस्चर होते हैं, राइट। एंड देन बांगर एंड खादर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम ये तीन जोन को देखते हैं, हिमालय, भावर एंड तेराई। सो लुक एट हियर, देखो जब हिमालय से रिवर नीचे आएगी तो उसका स्पीड ऑब्वियसली काफी ज्यादा हाई होगा। जब स्पीड ज्यादा होगा, जब पानी का फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, उस पानी की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? उस पानी में बड़े बड़े स्टोन भी आसानी से तैर सकेंगे, दूर जा सकेंगे, राइट और नो। अब जब पानी का स्पीड ज्यादा है, बड़े बड़े स्टोन्स नीचे उतर रहे हैं, राइट और नॉट, पानी के साथ, जब ये नीचे आया फुट हिल के पास, हिमालय के फुट हिल के पास जब ये स्टोन्स आए तो पानी का रफ्तार क्या हुआ, पानी का स्पीड थोड़ा कम हुआ। जब पानी का स्पीड कम होगा तो जो बड़े बड़े स्टोन्स है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे? इस जोन में डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हावर जोन। ये एक नैरो बेल्ट है, अबाउट 8 to 16 किलोमीटर, ठीक है, इसका जो विड्थ है वो कितना है, 8 to 16 किलोमीटर, राइट, जस्ट बिलो द माउंटेन, दैट मीन्स फुट हिल के पास। माउंटेन जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ये वाला रीजन स्टार्ट होता है 8 to 16 किलोमीटर तक। कहाँ पर? शिवालिक, यू नो, ये हो गया नॉर्थ पार्ट, दैट मीन्स यू कैन से हिमाद्री, उसके बाद लेसर हिमालय, और ये क्या हो जाए, कह सकते हैं इसको शिवालिक कह सकते हैं। तो शिवालिक के बाद जस्ट 8 to 16 किलोमीटर का जो रीजन होता है इसको भावर जोन बोलते हैं, राइट। ये वाला रीजन में काफी बड़े बड़े स्टोन्स मिलते हैं देखने को, राइट, मीडियम साइज के। और यहाँ पर क्या होता है, जो रिवर का स्ट्रीम्स होते हैं, रिवर जो है यहाँ पर डिसिपेयर हो जाती है। क्यों डिसिपेयर हो जाती है? क्योंकि ये स्टोन्स के बीच में जो काफी सारा स्पेस है, पानी उसके नीचे से गुजर जाती है एंड वापस ये पानी तराई जोन में रीअपियर होती है, राइट, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से स्टोन जमा कर दोगे, राइट, और पानी इधर से नीचे से डालोगे, तो इधर से अगर पानी डालोगे तो क्या होगा, वो पानी
स्टोन के बीच से पास हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो कई सारे रिवर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि ये सारे रिवर वाटर जमीन के अंदर, दैट मीन्स जो ये जो स्टोन्स के अंदर से बहती है और वापस ये तराई जोन में वापस यहाँ पर रीअपियर होती है, यहाँ पर दिखती है। सो दिस इज कॉल्ड भाबर जोन, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सो लुक एट हियर, दिस इज भाबर जोन। इस तरह का स्टोन्स होता है और इसी स्टोन्स के अंदर जो है कई सारे रिवर रिवर देखो यहाँ पर रिवर कितना कम दिखाई, पानी कितना कम दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्टोन्स के बीच से निकलती है, अंदर भी काफी ज्यादा पोरस होता है, अंदर पानी निकलती है, राइट। सो दिस इज भाबर जोन, राइट। अब हम आते हैं तराई जोन, राइट। आफ्टर भाबर जोन ये तराई जोन पाया जाता है। ये काफी ज्यादा वेट होता है, गीला होता है, स्वाम्पी होता है, राइट। मार्सी होता है, यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे वेजिटेशंस मिलेंगे आपको, राइट। इसको हम तराई जोन बोलते हैं, राइट। ये जो है काफी ज्यादा थिकली फॉरेस्टेड रीजन था पहले, राइट। यहाँ पर काफी ज्यादा फॉरेस्ट मिलता था और वाइल्ड लाइफ भी मिलते थे। लेकिन जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ तो जो पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आ रहे थे, पाकिस्तान से जो लोग आ रहे थे, तो उनको यहाँ पर बसाया गया, वहां पर उनको सेटल किया गया, राइट। सो इस लोलैंड बेल्ट में ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, स्क्रब मिलते हैं आज के डेट में, साल फॉरेस्ट मिलने देखने को मिलते हैं, कई सारे लंबे लंबे हार्डवुड ट्री मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। और यहाँ पर काफी ज्यादा स्वाम्प होता है, मतलब वेट वेट लैंड होता है, राइट। यहीं पर एक नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, वो हम लोकेट करेंगे। ये है हमारा तराई रीजन। सो आपसे अगर पूछा जाएगा व्हाट इज तराई रीजन, तो आपको यही लिखना है, साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स री emerge and create a wet swampy and marshy region known as तराई, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर देखो आप किस तरह का लैंड दिखता है, काफी ज्यादा ग्रीन है, राइट। यहाँ पर काफी ज्यादा वाटर्स होते हैं, राइट। तो ये तराई रीजन जो है ये कहाँ पर मिलता है, देखो यहाँ पर है हमारा, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद ये हमारा कंट्री का बॉर्डर है, राइट, समवेयर हियर, ठीक है। उसके ऊपर ये माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज है। हिमालयन माउंटेन रेंज के बाद यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा रीजन होगा जो कि भाबर रीजन होगा, राइट। भाबर रीजन के बाद ये वाला जो रीजन है ये पूरा, ये क्या है, तराई है, राइट। इस तराई रीजन में काफी ज्यादा ये मार्सी लैंड है, ठीक है, वेजिटेशन होता है यहाँ पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर देखो दुधवा नेशनल पार्क ये है यहाँ पर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दुधवा नेशनल पार्क और भी कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पर, राइट। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन सपोर्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर का जो कंडीशन ऐसा है कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको वाटर भी मिल जाता है, जो हमारा वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, उनको भी वाटर मिल जाता है। दैट मीन्स दिस इज वाटर रिच एरिया, राइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बांगर एंड खादर। सो आई थिंक बांगर एंड खादर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इफ यू डिडंट, लेट मी टेल यू। देखो ये हमारा रिवर है, टेक एन एग्जांपल, दिस इज द रिवर, रिवर कोर्स, और इसके बीच में क्या हो रही है, पानी बह रही है, ठीक है। दिस इज द वाटर फ्लोइंग टूवर्ड्स ओशियन, राइट। ये ओशियन की तरफ पानी जा रही है। अब ये सोचो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मानसून, जब मानसून आया, राइट, तो मानसून आएगा तो क्या होगा, पानी रिवर का बढ़ जाएगा। जब रिवर का पानी बढ़ जाएगा तो यही पानी कहाँ तक आ जाएगा, टेक एन एग्जांपल कि ये यहाँ तक आ जाएगा, ये रिवर की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, है ना। चौड़ाई अगर बढ़ जाएगी तो ये वाला जो एरिया है, राइट, पानी यहाँ तक आ जाएगा। वापस से जब बारिश का मौसम खत्म होगा तो पानी फिर से रिसीड करके फिर से वापस से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, वापस से अपने जो नॉर्मल कोर्स है रिवर का वहां तक आ जाएगा। तो अब जो ये वाला एरिया बचा, ये वाला एरिया, इस एरिया में चूंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन यहाँ पर पानी आया था, राइट। जब पानी आया तो पानी के साथ साथ कई सारे छोटे छोटे फाइन सॉइल के पार्टिकल्स भी थे, वो सारे सॉइल पार्टिकल्स यहाँ पर डिपॉजिट हो गए,
राइट, जो कि काफी ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा सॉइल यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, इधर भी डिपॉजिट हो गया, राइट। सो ये जो सॉइल कहलाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, खादर, इसको क्या बोलेंगे, खादर। एंड बियॉन्ड दिस लाइन, बियॉन्ड दिस फ्लड, इसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं, इसके बियॉन्ड जो है, इसको इधर जो सॉइल मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बांगर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बांगर सॉइल बोलते हैं, राइट। सो वही यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये रिवर है, यहाँ वाटर है, ठीक है, रेनी सीजन में पानी जहां तक जाएगा, राइट, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, खादर सॉइल, यहाँ पर जो सॉइल मिलेगा उसको हम खादर सॉइल बोलेंगे, और उसके एवं इस साइड में इसको हम क्या बोलेंगे, बांगर सॉइल बोलेंगे, राइट। सो लुक एट हियर, सो जो है उसका लार्जेस्ट पार्ट ओल्डर ओल्डर सॉइल, दैट मीन्स बांगर सॉइल से बना है, बांगर सॉइल को हम ओल्ड सॉइल भी बोल सकते हैं, खादर को हम क्या बोल सकते हैं, न्यू सॉइल भी बोल सकते हैं, राइट। सो सो हमारा जो लार्जेस्ट पार्ट है वो किससे बना हुआ है, बांगर सॉइल से बना हुआ है, राइट। एंड दिस सॉइल, बांगर सॉइल इज रिच इन कैल्सरस डिपॉजिट, ठीक है, जो छोटे छोटे नोड्यूल्स इसके होते हैं, मैं दिखाता हूँ ये कैसे होते हैं, राइट। एंड वन डेफिनेशन यू शुड रिमेंबर, देखो एलुवियम का मतलब क्या होता है, एलुवियम यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, एलुवियम, एलुवियम का मतलब होता है सिंपली सॉइल, यू कैन से ये सॉइल होता है ए डिपॉजिट ऑफ क्ले सिल्ट एंड सेंट लेफ्ट बाय फ्लोइंग फ्लड वाटर। अगर रिवर के द्वारा कोई मिट्टी लेके आके डिपॉजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियम बोलते हैं, राइट। ओके, कम टू द पिक्चर ऑफ बांगर सॉइल, देखो ये है हमारा बांगर सॉइल, राइट, दिख रहा है किस तरह से छोटे छोटे यू कैन से टुकड़े हैं, और ये हमारा है एलुवियल सॉइल, देखो ये कितना ज्यादा फाइन है ना, ये थोड़ा कम फाइन है, राइट। सो ये बांगर क्या हो गया, ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया, इसकी जो फर्टिलिटी है, राइट, वो लेस होती है कंपेरिजन टू द खादर सॉइल। इसका मतलब खादर सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, और बांगर सॉइल की फर्टिलिटी लो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लैंड फर्टाइल नहीं है, ये भी बहुत फर्टाइल है, लेकिन मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि खादर से बांगर जो है वो कम फर्टाइल होता है, राइट। ओके, एंड देन खादर सॉइल के बारे में एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज द न्यूअर यंगर डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिटेड ऑन फ्लड प्लेन्स, इसको हम फ्लड प्लेन बोलते हैं जहां तक पानी जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, राइट। एंड दिस रीजन इज वेरी मच आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। सो इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, क्लास 8 में मैंने एग्रीकल्चर चैप्टर में आपको पढ़ाया है, राइट। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर सॉइल, इसको आप एक एक करके पढ़ोगे, ठीक है। खादर और बांगर सॉइल का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, राइट। सिंपल सा है, खादर इज अ यंगर एलुवियम as flood water deposited new layer every year, while at the same time Bangar is a found in largest part of northern plain and made of old alluvium, right, old alluvium से बना होता है, ये फाइन होता है, ये क्रॉसर होता है, ये बिल्कुल पतला पतला होता है, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसका साइज होता है, राइट। खादर इज वेरी फर्टाइल, आइडियल फॉर इंटेंसिव कल्टीवेशन, खादर ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, ये थोड़ा लेस फर्टाइल होता है ना। देन खादर इज लेस calcareous, right, बांगर इज फुल ऑफ कंकर, कंकर मतलब वही छोटे छोटे नोड्यूल्स, ठीक है, थोड़े बड़े साइज के नोड्यूल्स, राइट। देन ब्राउन इन कलर, इसका जो कलर होता है थोड़ा ब्राउन होता है, ये थोड़ा डार्क कलर का होता है। सो this is how you can divide, or you can write your own division of Khadar and Bankar soil. No need to write so much points, right? So write down in your own words 2 to 3 points that what is the difference between Khadar and Bankar soil. So I think that's enough for today, and in next lecture we will discuss the Deccan Plateau, our South India part, right? Okay, thanks, have a nice day.